تقریر پیش کر رہی ہے۔ توحید پر تقریر تھی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ حنین کو اور انہیں ایوان ان کو کے بعد منگوان حنین اور ایمان علی آئیں سوال جواب پیش کریں گے۔ ان کے بعد آشنا اور عائشہ گروپ مکالمہ پیش کریں گی، تیار رہیں۔ حنین لے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی میں مدرسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ انعامی جلسے کمائے میں دکھا رہی کہاں پہ جھیل آئی۔ بھائی میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دو گے؟ جی بھائی میں پوری کوشش کروں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو بتاؤ پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلی عورت کون؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ پہلا نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلا رسول کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پہلا قاتل کون؟ قابیل۔ پہلا مقتول کون؟ حابیل۔ پہلے غلاف کعبہ ڈالنے والا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پہلا خط لکھنے والا کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ پہلا روزہ رکھنے والا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلا حج ادا کرنے والا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلا مہمان نواز کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی قربانی کرنے والا کون؟ حابیل۔ پہلی کشتی بنانے والا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پہلے مؤذن کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی جنگ کون؟ جنگ بدر۔ ماشاءاللہ آپ نے تو سارے سوالوں کے جواب صحیح بتائے ہیں۔ یہ تو بتاؤ آپ کو یہ سب باتیں کون سکھاتا ہے؟ ارے بھائی یہ سب باتیں تو ہمارے مدرسے میں ہمارے استاد حضرت مولانا فاروق صاحب کافی سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ باقی آپ کے مدرسے میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ میں بھی رمضان کے بعد آپ کے مدرسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخلہ لوں گا۔ چلو چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی آپ بھی آئے اور آپ اپنے دوستوں کو بھی آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ اب ان کے بعد آشنا اور عائشہ گروپ تشریف لائے، مکالمہ پیش کریں۔ ان کے بعد نگہت اور مہناز بانو سوال جواب کے تیار ہے۔ کامیڈی والے سوال جواب کر لے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کسی مدرسے میں پڑھتی ہوگی۔ جی بہن ہم سب مدرسہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ رانی مسلح میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنے مدرسے ہی جا رہے ہیں۔ 5 جنے آ گئے بھائی، ملاقات ہوئی، میں کئی دنوں 5 سے جنے۔ کسی آپا کی تلاش میں تھی۔ مجھے چند سے سوال پوچھنے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، ہم سب لوگ پوری کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ کوشش کیا پوچھنا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے کیا گھر کی حفاظت کے لیے کتے کو پال سکتے ہیں؟ عام حالات میں گھر میں کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں جس جگہ میں کتے ہوتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اب صبری کتا ہے، لگی 5 والے محلہ میں، محلے میں رونق نہیں آ رہی، پتہ چلو۔ البتہ اگر حفاظت کی غرض ہے اور آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی گنجائش شریعت میں ہے، اور اگر آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کتے کو پالنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے۔
माही आप ये बताइए क्या क्लासेस के लिए नमाज कज़ा कर सकते हैं? जी नहीं, आप नमाज के लिए क्लासेस क्या कर सकती हैं? जीनत आप ये बताइए, मैंने सुना है कि कल क़यामत के दिन है और आज अपने माँ बाप को बददुआएं देंगी, क्या ये सच है? जी हाँ, जिन माँ बाप ने दुनिया की जिंदगी के अंदर अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र नहीं की, वो माँ बाप कहते थे मेरा बच्चा स्कूल के लिए तो पढ़ रहा है, कॉलेज के लिए तो पढ़ रहा है, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए ही तो पढ़ रहा है, लेकिन असल हुकूक है कि अल्लाह के लिए तो पढ़ लिया। मेरे बच्चे ने फजर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। अगर बेटी है तो हिजाब कर रही है। ये माँ बाप का फर्ज है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों की दीन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इस तरह बच्चे भी गुमराह हैं और माँ बाप भी गुमराह हैं। कल क़यामत के दिन वो बच्चे अल्लाह से कहेंगे लानत हो ऐसे माँ बाप पर जिन्होंने मुझे ठंडी से बचाने के लिए तो गर्म कपड़े पहनाया, लेकिन जहन्नुम की आग से बचने के लिए तो इनकी तालीम नहीं दी। अलीजा आप ये बताइए, क्या इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र मुतय्यन है? जी नहीं, बल्कि अरबी का एक मकूला है, मेरा महरिज वाहिद ना हुकूक से कब्ल के आप और सब इल्म सीखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग खो को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। इनके बाद निकाहत और मेहनाज बानो सवाल जवाब पेश करेंगे। मोहम्मद अरसिल इब्न मकबूल शेख नाज के लिए तैयार है। जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, क्या मैं आपसे दीनी सवाल पूछ सकती हूँ? जी बहन, बिल्कुल पूछ सकती हो। कौमे आद के नबी कौन थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौमे समूद के नबी कौन थे? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा के जमाने में जालिम बादशाह कौन था? फिरऔन। हजरत शुआब अलैहिस्सलाम किस इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे? मदीन की तरफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? 950 साल तक। खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रबीउल्लाह किसका लक़ब है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। रूहुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। किस नबी को मछली निकल गई थी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह, आपने सारे सवालों का जवाब सही दिया। चलो अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इनके बाद मोहम्मद अरसिल इब्न मकबूल शेख तशरीफ लाए। इस शेर से दावत देता हूँ। चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आंख में जादू हो तेरे ज़बान में है। मोहम्मद अरसिल बिन मकबूल शेख माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक समाज फरमाएं। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे
زمانہ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں؟ بھول جاؤ گے اگر دیبا کو جاؤ گے تو آنا بے شک، بھول بے شک، صحیح بات۔ جاؤ گے اگر تم حدیث مصطفیٰ پڑھ کر لو عمل پیرا اگر تم حدیث مصطفیٰ پڑھ کر لو عمل پیرا قسم رب کی کبھی ماں کو نہ بھول جاؤ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ ماشاءاللہ۔ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ لکی لو چلا تھا نا حافظ جی کمال تھے جائیے چلا ریویوز تو کل آ رہی جو ٹھیک ہے لو پکڑا جو ہے تین تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ ان کے بعد فہد بن وسیم تشریف لائیں اور تلبیہ پیش کریں۔ فہد بن وسیم، ان کے بعد اسد گروپ قیامت کی نشانیوں کے عنوان پر مکالمے کے لیے تیار ہے۔ جو کہاں سے ہو کریم سے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، یہ قدم جہاں بھی دیکھو گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ ان کے بعد یو جیفا آئین صد آیت آئیں اور نعت پیش کریں۔ آیت خاتون۔ لبوں کو کھول دو پھولوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو کھول دو پھولوں کی شگفتگی کے لیے، ترس رہا ہے زمانہ بس ایک ہنسی کے لیے۔ آیت تشریف لائیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے چھوٹنے ہے کا
नाम बस देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर इसी में मौजूद है जिसमें आकर कलाम इलाही दिया जिसमें आकर कलाम इलाही दिया वो मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पर फिसलने अला फूल खिलते हैं पर फिसलने अला झूम करके रही है ये बातें सबा ऐसी खुशबू चमन के गलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गलों में कहाँ फूल के पसीने मौजूद है आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर इसी में मौजूद है माशाअल्लाह। इनके बाद असद ग्रुप आए और क़यामत की निशानियों पर कलमा पेश करें। असद को ग्रुप ये मोटी और सब रही हैं अरे और ठीक है जो सुबह है ये सब थोड़ा है आज मसल्ला फास्ट कर थोड़ी देर फिर मसल्ला ये असल ग्राम थी मुदस्सर और सभा हैं हम सबको यहाँ देखते होंगे मदरसे में पढ़ा गई उल्टी को मार करके स्टेप उल्टी बन गई स्टेप कैमरा को माशाअल्लाह सब हाजिर हैं। हमने आपको कल 4 चीजें बताई थी। नंबर 1 खत्म नबूवत, नंबर 2 हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 4 दज्जाल। हम आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म नबूवत नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के बंदे और इंसान होते हैं। ये कहाँ बोलो अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं। वे सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, अल्लाह ताला के हुक्मों में कमी ज्यादती नहीं करते, कोई हुक्म छिपाते नहीं। माशाअल्लाह। सबसे पहले पैगंबर और सबसे आखिरी पैगंबर कौन है? मुझे भी अटक गए। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या कोई नया नबी आएगा? नहीं, नबूवत और रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई और आखिरी बात क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। माशाअल्लाह। क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी और रसूल बन सकता है?
नहीं बल्कि जिसको खुदा ने बनाए वही बनता है। माशाअल्लाह। क्या कोई आदमी अपनी कोशिश, हजरत अगर कोई शख्स हमारे नबी के बाद नबूवत का दावा करे वो कैसा है? हमारे नबी के बाद अगर कोई नबूवत या रिसालत का दावा करे वो झूठा है। माशाअल्लाह। हमारे नबी के बाद कोई शख्स नबूवत और रिसालत का दावा करने वाले को माने वो कैसा है? अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करने वाले को माने तो वो काफिर या मुर्तद है। माशाअल्लाह। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या क़यामत के करीब हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ाहिर होना बरहक है? जी हाँ, इसलिए कि हमारे नबी जो उनके ज़ाहिर होने की खबर दी है। माशाअल्लाह। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या होगा? हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। माशाअल्लाह। जब हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मोहम्मद होगा तो क्या मेहदी उनका दूसरा नाम होगा? माशाअल्लाह। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पैदा हुए? माशाअल्लाह। थोड़ी देर बाद भेज देगा। माशाअल्लाह। क्या हजरत मेहदी नबी होंगे? बल्कि वो अल्लाह के खलीफा होंगे और हमारे नबी की सैयद पर अमल की और चलाएंगे। माशाअल्लाह। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या होगा और हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कहाँ होगा और उनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल फ़लस्तीन में होगा और उसकी जनाजे की नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत के दो नाम हैं या अलग अलग? माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले ज़ाहिर होंगे या हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद वालिदा का क्या नाम होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद के कोई बगैर बाप के अल्लाह ताला ने उनको अपनी कुदरत से पैदा किया है। वालिदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई या आपको शहीद किया गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना तो वफात हुई ना तो उनको शहीद किया गया, बल्कि उनको जिंदा आसमान में उठा दिया गया और क़यामत के करीब दुनिया में नाज़िल होंगे। माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाज़िल होंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम के शहर दमिश्क में नाज़िल होंगे और दुनिया में 40 साल रहेंगे। उसी दरमियान वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। माशाअल्लाह। दज्जाल कौन है और उसका मतलब और मायना क्या है? दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। सब नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। दज्जाल के माना है निहायती ही झूठा और मक्कार शख्स जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करेगा। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये था सदगुरु जो कि बहुत ही मालूमात अफजा मुकालमा पेश कर रहा था। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। अब मैं जो है आखिर में सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मवाइज़ हसना से हम सामाईन को महसूस फरमाएँ। इस शेर के साथ
کہ اٹھ کہ ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب مولانا معین الدین صاحب ندوی دعوت برکاتہ مرادیہ مائک پر۔ یہی پڑھاتا میں درود شریف پڑھیں۔ اچھا پڑھاتا والی مدرسے میں حاجی بلڈنگ والے میں صلی علی سیدنا ان کے بعد ایک اور جو بڑے والے ہیں ایسے بھی آئے ہیں موٹے موٹے ہیں الحمدللہ الحمدللہ معبود آپ صاحب والسلام علی عبادہ الذین اصطفى دیکھو بھائی اب چلا لو یا بھائی گیا تھا نا خیال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حیان آیا ہے بھائی یار حیان موٹا نہیں ہوا بھلو لگاتا ہوں فون لگاتا ہوں بات کرا اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام مفتیان اعلان میں اور بات کرا شہر کے دین کے فکر مند رکھنے والے حضرات گرامی اور محلے سے شہر کے کونے کونے سے آنے والی ہماری ماں اور بہنیں پیارے بچوں اور بچیاں حضرات علماء کرام کا حکم ملا ہے نہیں اٹھا رہا صرف 5 منٹ اٹھا تو لو لیکن حیان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے خوشی کا اظہار کریں۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے صرف اور صرف توفیق الہی کی ہے۔ کھاؤ نے 11 گھنٹے آپ سب حضرات کی فکریں اور اب حضرات کی دلچسپی اور لگن الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں اٹھا رہا ہوں بچے اور بچیاں اور انہوں نے جو اس طریقے سے پروگرام پیش کیا تو میں سب سے پہلے اپنے خاص شاگرد جناب مولانا فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ لگن اور فکر کے ساتھ گھر گھر جا کر بچوں پہ محنت کی جھکا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی جو جن کے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مکتب کے اندر بچوں کو اور بچیوں کو پابندی کے ساتھ جو بھیجا ہے یقیناً ان کے گھر میں رہے والے کے ٹائم سب بچوں کو ملنے کا جتنے ہمارے بچے اور بچیاں ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے احسان جلا رو یہاں پہ جی کے یہ مکاتب کے بارے میں جو فضیلت بچوں نے خود بیان کر دی ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے شہر بنا۔ ہمارے علماء کرام نے مشورہ کیا کل الحمدللہ اندر پوری کالونی میں بھی بہت شاندار پروگرام رہا، آج یہاں پر ہے سب علماء کرام نے مشورہ کیا کہ محلے محلے میں پروگرام اس بار کیے گئے۔ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، اللہ نے آپ حضرات کی محنت اور لگن سے شہر کے بچے اپنی ہندی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو مقصد ہے وہ اپنی تعلیم بھی کرتے ہیں۔ میں بار بار آپ حضرات سے یہی کہتا ہوں کہ ہم ہندی پڑھانے کو منع نہیں کرتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ پڑھائیے، بھرپور تیاری رکھیے، ہر زبان میں اسلام کا انٹروڈکشن کرائیے، اسلام کا تعارف کرائیے، کوئی نہیں منع کرتا۔
हमने भी तालीम पढ़ाए तो उसमें भी हमारी नीयत हो कि ये बच्चा بیٹھا تو جیم میں ڈائر ہو ایک لے کھا لو किसी इंसानियत के बारे बन जाए और इस्लाम के کو ملو क्योंकि इस्लाम खुद इंसानियत का सरापा मजहब है। جیم دو इसलिए अल्लाह का फजल व करम है आप हजरात की फिक्रों से मेहनत से अच्छी खासी तादाद और आप सबने दिलचस्पी लिया अगर यही दिलचस्पी आप लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह पन्ना शहर में कोई घर नहीं होगा जिस घर में बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा। बस आपके अंदर इस्तिकामत और इखलास होना चाहिए। हमारे कारी सिद्दीक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की सबसे ज्यादा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मकातिब बुनियाद है। अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता है जाए पढ़ने जाए यकीनन भेजते रहे लेकिन मकतब से गुजर कर बगैर मकतब से गुजर के अगर स्कूल जाएगा तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे अकादमी बार जोर देते हैं यहूदियत से बचने का वाहिद जरिया है हमारे बच्चों को मकतब भेजना। हर तरीके का प्रोग्राम पेश किया माशाल्लाह मौलाना ने भूल गए थे के साथ मेहनत किया। हजरात की फिक्रे रही अल्लाह ने ये मकाम दिया कि सारे बच्चे इस्लाम के नमूना और ऐसी मालूमात ऐसी बातें छोटी छोटी बच्चियां ने गुस्ल के फराइज लोगों को मालूम है क्या नहीं मालूम है। बुनियादी चीजें जो बच्चों ने पेश किया है ये इसलिए नहीं ये इसलिए कराया जाता है ये मुकालमा ताकि हम देखें कि ये कितनी जरूरी चीज है। इतना इल्म सीखना हर शख्स पर फर्ज है जिससे हलाल देख ही रहो कोई एक जने बस देख ही रहो। अगर हमने इतना इल्म नहीं सीखा जानने वाले न जानने वाले बराबर हो ही नहीं सकते। देखने कैसे पड़ता ये तालीम कोई खिलवाड़ नहीं, ये तालीम रहमत है, ये आपके घर के लिए बरकत है, ये आपके लिए तरक्की का सबब है। अगर तालीम में कौम पीछे हो गई तो जिल्लत के लोग हो जाते हैं और अगर तालीम में आगे आ गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज कल भी बुलंद थी और आज भी बुलंद रहेगी और हमेशा बुलंद रहेगी। जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कुल हल यस्तवी लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह ताला का फरमान है। लाइव कैसी अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर फरमाते हैं इन्नमा आज हम आए हैं हां भाई अल्लाह से हकीकी डरने वाले जिससे उलमा। ये इनमें कौन सा बच्चा कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बन जाए, कौन मौलाना अली बन जाए, कौन रहमतुल्लाह अलैह, कौन मौलाना अबरारुल हक साहब बन जाए, जितने भी बड़े बड़े अकाबिरीन आए क्या पता अल्लाह ने किसके पीछे क्या लिखा। इसलिए आप सबका यहाँ पर बैठना, आप काफी देर से प्रोग्राम सुन रहे थे, आप बड़ा कीमती वक्त दिया और आपको अल्लाह ताला इसको खूब अजर अता फरमाए। आने वालों को और जो वक्त के साथ पाबंदी के साथ जल्दी के साथ आपसे दरखास्त ही करता हूँ कि जिस अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब भेजते हैं चाहे आप 1 घंटे के लिए भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लिए पूरे शहर में ये ऐलान है कि जहाँ पर भी 10 से 15 बच्चे हो जाएं वहाँ पर इंशाअल्लाह हम उस्ताद भेजेंगे। जहाँ पर गाड़ी खाने की बात आई इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान फारूक साहब से कहा वहाँ भी देखिए वहाँ के दो जिम्मेदार भी मुतय्यन किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 43 बच्चे गाड़ी खाना देखा अल्लाह ने कामयाब यहाँ की भी हाल माशाल्लाह आप लोगों ने फिक्र की अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 बच्चे हो गए बच्चे मिला। बस इसी तरह आपके इखलास के साथ कि अल्लाह राजी हो जाए ये हम नियत कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। इतनी अजीम शान मेहनत हुई है कि जितनी मैं आपसे तारीफ करूं वो कम है। ये बच्चे जो इंटेलिजेंट दिख रहे हैं आपको ये उस्ताद की मेहनत है, ये सिर्फ उस्ताद की मेहनत है, आप हजरात की इखलास की मेहनत है। माशाल्लाह आप हजरात की जिम्मेदारी निभाई और आपके बच्चों ने मेहनत की, वक्त दिया, कितना नूरानी माहौल नजर आता है।
इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये मदारिस, ये मकातब किसी फिरके के नहीं है। इस मदरसे का मकतब का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है और आका मदनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान भी एक है, अल्लाह भी एक है, हमारे आखिरी नबी आका मदनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। या ऐसा नहीं कि किसी कोई फीस ली जा रही हो, आपसे कोई मुतालबा किया जा रहा हो। बस यही हाल है कि जहाँ फीस लगती, हम स्कूलों में, मैं अपने बच्चे को छोड़ने जाता था, मैं देखता था कि स्कूलों में हम फीस देकर भी, अगर वो, माफ कीजिएगा मैं बहुत हक के साथ बात कह रहा हूँ, स्कूलों में फीस देने के साथ साथ में अगर वो सर्विस वाला है, ईमानदारी से बताइएगा, मैं सवाल है, सर्विस वाला है, दुकान वाला है, मकान वाला है, किसी जरूरी मसरूफियत वाला है, खेत वाला है, अपनी वो जिम्मेदारी को छोड़ के बच्चे को स्कूल लेने जाता भी है और छोड़ने भी जाता और लाता भी। आपसे बताइए कौम की हालत क्यों हो गई। हम अपने बच्चे को जब स्कूल तैयार करते हैं, बताइए, मौलाना का अभी हुक्म मिला है थोड़ा और पढ़ा दीजिए, मैं तो 5 मिनट के लिए मैंने आपसे कहा था। अरे इतने तक की लाइक गाड़ी लेके मदरसा का। तो मैं आपसे ये बस आखिरी बात याद कर रहा हूँ, जब अपने बच्चों को भेजते स्कूल, सबको देखा है, सबको जानता हूँ, सब इंतजाम करके, और ये कहा जाता है जल्दी करो नहीं तो बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, और पाबंदी के साथ भेजते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 3 बार मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर ये दिलचस्पी इस कौम के अंदर मदरसे में भेजने में बच्चों को हो जाए तो अल्लाह की मदद ऐसी आएगी कि हम आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे। अगर हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं, हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता, चाहे जितने भी हम किताब बन जाए, अगर हमारे बच्चे कुरान न सीख सके, हमारे बच्चे कुरान न सीख सके, हमें यहाँ तक, जब आपसे मोहब्बत है मैं खुल के कह रहा हूँ, हमें तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करने में जो मिट्टी डालते हैं वो दुआ करनी मोहब्बत है, वो कह रहा हूँ, बहुत खुल के कह रहा हूँ। और अगर किसी को याद है तो उसका तर्जुमा नहीं पता, मुस्लिम में कितने फराइद है, तयम्मुम में कितने फराइद है, हमें कुछ मालूम ही नहीं। तो अपने सामने ये कहाँ से ये कौम कहाँ ये कौम कहाँ चली गई। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम आपसे मातबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे हौसले अफजाई के साथ, माशाल्लाह कल का प्रोग्राम भी बड़ी ही तारीफ के काबिल, और आज का भी माशाल्लाह काबिल तारीफ है। हम दोनों प्रोग्रामों के लिहाज से सारे शहर वालों को मुबारकबाद देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। आपके अंदर ये खुशी आना चाहिए, और आपके अंदर ईमान है, ईमान की हलावत है, तो हमारी माओं के अंदर, बहनों के अंदर, दोस्तों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर ये खुशी होनी चाहिए, ये हलावत पैदा होना चाहिए। इस तरह खुशी होना चाहिए जैसे बच्चों के ईद और बकरीद में होती है, रिजल्ट के आने पर, फर्स्ट डिवीजन आने पर खुशी होती है, उससे ज्यादा आज हमारे शहर वालों, सारे शहर की बात कर रहा हूँ, सारे शहर वालों में ये खुशी होनी चाहिए। तब तो हदीस पाक में आता है कि जब कोई चीज अच्छी देखे तो लगे तुम्हारे दिल में चाहे अच्छी है, तुम्हारा दिल गवाही देने लगे तो समझना कि तुम ईमान वाले। और जब कोई चीज बुरी लगे और फिर उसकी बुराई की मजम्मत तुम्हारे दिल में आ जाए तो समझो आप ईमान वाले। ये मक्तब के मदरसा सुल्फाए नबी की यादगार है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस को सुनने के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भूखे रहकर हदीस सुनते। इल्म का हुक्म तो ये, अगर आप करना पड़े तो आसानी से मिल गया है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, जो बुदेश कहा जाता है, हमें कदर नहीं।
اور یہ کہہ کے آنا اچھی چائے بنی ہے. جلدی چھٹی دے آپ بھی دیجیے، آپ بھی تاکہ وقت کا ٹائم ہو گیا ہے. ابا کا اچھی چائے بنی ہے. 50 سال گزاری کہاں سے نہیں آئے گا بتائیں. 1 گھنٹے کے لیے بھی آتا ہے بچہ اور یہ آ رہی جلدی میں آتا ہے جو مدرسہ بھیجتے ہیں. ہمیں ملی رہی نے چھڑا لی کی بات ہے سب سے کہہ رہا ہوں میں بھی شامل ہوں جب مدرسہ بھیجتے جس پوزیشن میں ہوتا ہے جلدی جائے. مائیں بھی ہماری کہتی ہیں بہنیں بھی ہماری کہتی ہیں کہ جلدی جاؤ جلدی سبق سنا کے ترنت آ جانا. یہ عظمت ہے مسلمان، کیا بج گئے یہ عظمت ہے قرآن، 8:48 یہ عظمت ہے کیا اسلام کی. آپ بتائیے میں آپ ہی طرح سے پوچھتا ہوں کہ ہم اسکول جب بھیجتے ہیں کتنے اہتمام کے ساتھ بھیجتے کتنی اہمیت کے ساتھ آپ بھیجیے. ہم منع نہیں کرتے اور اہتمام سے بھیجیے، لیکن مکتب کے بھیجنے میں سب سے زیادہ اہمیت آپ کے دل میں ہوگی تو ہمارا ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے، ورنہ پھر ہماری ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے. اس لیے میرے بھائی ہم آپ حضرات سے اخیر میں یہ درخواست کرتے ہیں اور آپ سے بہت زور طریقے سے درخواست کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بچوں کو بھیجا ہے کسان جلدی ارے چائے آ رہی پکڑو. ارے تے تو آنے لے کے ہم لے کے آ رہے ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ ہم نے یہ بھی ارادہ کیا ہے ارے یار نہیں یار کہ ایک مولانا کی رہی ارے یار پکڑو یار ٹھیک ہے ہم سے نہ بولو تعلیم نہ ہو پائے گی انشاءاللہ عید کے کہاں دکھا رہے ہیں آپ برابر بھیجیں. یہ مدرسہ اللہ کی نسبت کا ہے، یہ مدرسہ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ہے، کسی اور نسبت کا نہیں. اگر کوئی بھی شخص کسی جگہ کو کسی نسبت کے اعتبار سے کہتا ہے یہ فلاں فرقے کا ہے یہ فلاں جگہ کا ہے، یاد رکھیے وہ مسلمانیت نہیں ہے. اس دور کے لحاظ سے امت کے لحاظ سے دکھا تو بیٹھے تو ہو جائے دکھاؤ آپ جی کو موبائل لائیو کر لیں کی بات کرتے اپنے پیٹوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہدیت ہے کی بات کرتے ہیں. یہ میں جھوم ہے یار صاحب. آپ اپنے بھرتے جا رہے ہیں، اجتماعیت کو بجائے جوڑنے کے توڑنے میں لگے. صاحب وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ پورے شہر پڑھنے کا مدرسہ ہے، پورے شہر پڑھنے کا مدرسہ ہے. سارے بچوں کا حق ہے، سارے بچے پڑھنے کا حق ہے. اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں ان باتوں میں قطعاً نہ آئے. جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان سے سوال پوچھئے کیا تم عاشق رسول ہو؟ کیا کوئی حدیث پیش کر سکتا ہے؟ کسی صحابہ کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ ایک بچے کو مکتب سے روکنا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایک مکتب سے بچے کو برگلانا یہ شیطان سے بڑھ کر یہ شیطان سے بڑھ کر ہوگا. شیطان نے اپنے سارے چیلوں کو ایک بار سارے چیل جمع ہوئے. مختصر بتا رہا ہوں، کسی نے کہا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، کسی نے کہا میں نے فلاں کام کر دیا، کسی نے کہا میں نے فلاں کام کر دیا. ایک نے کہا ایک بچے کو مکتب جانے سے روک دو. شیطان نے اس کو شاباشی دی، بہت اچھا. سارے لوگوں کو آپتی ہوئی کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، میاں بیوی میں لڑا دیا، کیا کیا بڑے کام کر دیا. چھوٹے سے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا، آپ نے اس کو شاباشی دی. جانتے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ اگر یہ بچہ مکتب جاتا، علم سیکھا، عالم بنتا تو عالم بنتا. اس لیے میرے بھائی دوستو ایک قاری صدیق صاحب نوار اللہ مرقدہ ہوا ہے، پورا بدیل کھنڈ سرسد شدہ. ایک علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ پورا سرسد شدہ ہوا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جتنے بھی بڑا بزرگان سب کی دو دار اپیل ہے مکاتب میں مکتب سے ہی شیخ بنتا. یہ جو نورانی طلبہ پڑھنے والے ہیں یہی شیخ بنتے ہیں، یہی پھر بخاری پڑھاتے ہیں، پھر یہی صحیح کتاب پڑھاتے ہیں، یہی پھر مسجد کے اندر جا کر مصلی پہ کھڑے ہو کر 50,000 لوگوں کو نماز پڑھاتے. سوچیے صحیح میرے بھائی دوستو. بس آخری بات، علم جو اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ ہے علماء اٹھا لیا. ایک وقت ایسا آئے گا اگر ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اگر ہم نے غور نہیں کیا، فکریں نہیں کی، بس ایسی سنتے چلے گئے، کیا فرق پڑنا ہے. ہمارا بچہ ماشاءاللہ 12ویں پاس ہو گیا ہے اور BA پاس ہو گیا ہے، الحمدللہ اچھی بات. میرا بچہ ایک بچہ حافظ قرآن بھی الحمدللہ اور 7ویں کا 12 بھی بھرے.
उसे स्कूल भी पढ़ाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। ये इसलिए कि दोनों तालीम आप पढ़ाइए, कोई नहीं कर, लेकिन पहला हमारा कुरान है। अगर हमारे अंदर कुरान की तालीम नहीं है तो कैसी नमाजें होती। मजाक की बात करता हूँ कि हम सब कहते हैं नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, जरा सा पीछे हो गया तो कितना मतलब बदल जाएगा। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, बहुत ही मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब देख के तो पढ़ता ही है, लेकिन मुंह जबानी अल्फाज इधर हो गए तो माना बदलेगा कि नहीं बदलेगा? माना फौरन बदल जाएगा। बड़ा हा की जगह छोटा आ जाएगा तो माना बदल जाएगा। तो हमें सीखने की जरूरत है। आपसे दरखास्त है कि एक मकतब बड़ों का हम चालू करना चाहते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा। बस सबसे बड़ी फीस है आप अपना वक्त दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते 1 घंटा दे दीजिए, सबकी नमाजें सही हो जाएंगी। आप अपनी पाबंदी के साथ, अपने दिलजमगी के साथ, जो भी लाइव देखा है वो जो कह सकते हैं, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे नबी कॉलोनी हो, चाहे आपका हरानी का अबू बकर हो, चाहे मरकज हो, कहीं पर भी एक आलिम हर मस्जिद में साल लगाए हुए मौलाना अब्दुल रब मुस्तकिल मरकज में रहते हैं। वो इस नियत के साथ उसे कहा गया है कि जो मसाइल हो, जो लोगों को पूरी की जाए। अरे हो गई 45 तो है, सब बैठे तो हैं, लेकिन हम कहाँ, आवाज हम भी नहीं सीखना चाहते। इसलिए किसी की कोई उम्र नहीं है। अगर कोई 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है और अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, आप जिदार सेहत वाक़ियत के साथ अगर सीखते सीखते चला गया तो शहीद उठाया जाएगा। शहीद उठाया जाए। आप इसको हल्के से ले रहे हैं इन चीजों को, आप सीखे तो सही। हम आपको चाहे पन्ना जी किसी कोने में हो, बड़ों के मकसद के लिए कहीं पर भी आप 10 से 15 लोग जमा हो जाए, अपने कीमती वक्त बता दे, अपनी मजबूरियत से निकाल कर रात के वक्त को छोड़ के इंशाअल्लाह। हक तो ये था कि आप जाए नीचे बनकर को देख रहा अयान मंसूर। अरे वो तो ऐसा ही है, जे है 3 और उनसे गुजारिश करें और उनसे दरख्वास्त के साथ कहें मुझे थोड़ा सा 20 मिनट का, आधा घंटे का वक्त दे दीजिए। आप इतना नहीं कर सकते हमारे उलमा की शान में गुस्ताखी के साथ, माफी के साथ। यहाँ की जरूरत के लिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप इसको बनाइए, बिल्कुल तैयार होइए। मैंने कई बार नफीस भाई से, शमीम भाई से, सबसे कहा है बनवाइए, कहीं तैयारी कराइए इसकी इंशाअल्लाह। और दिखाएं यहाँ पर दोस्त बैठे, सबसे दरबार कोई आलिम मुफ्ती आपको मस्जिद से भगाए, आपको कोई नहीं कहेगा। आप अपने इकराम के साथ, अपने इमाम के उलमा के इकराम के साथ, इसी तरीके से अपनी माओ और बहनों से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपनी तैयार बता दे, कोई पाबंदी पर्दे के एहतमाम के साथ कोई जगह बता दे। इंशाअल्लाह वहाँ एक आलिमा हमें वहाँ मसाइल सीखने की परेशान है, हमें सीखने वाले। आप कहते हैं हो क्या रहा है, हम आपसे कह रहे कसम खाकर हम हमारे उलमा हर वक्त तैयार है, पर तालिब नहीं। हम तालिब नहीं बचे, हमारे अंदर हर चीज का शौक तो आ गया है, लेकिन हमें सीखने का शौक नहीं। इसलिए उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह, हम तो आपसे बार बार कहेंगे, हमारा कहने का हक है, इंशाअल्लाह जरूर कि जरूर आप इस पर अमल करेंगे। आखिर में मैं अपनी माओं को और बहनों को, तमाम साथियों को, अपने बुजुर्गों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर से अपने मौलाना फारूक साहब को और यहाँ के जिम्मेदार महफूज भाई को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत रंग लाई है। बस कभी ये ना है कि हम कुछ करते हैं, अल्लाह ने सब कुछ किया है, यकीनन अल्लाह ही आगे करेगा इंशाअल्लाह। हमारी नियत इसी पर बरकरार है। अल्लाह हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 6 फरवरी को बाद नमाज मगरिब सारे प्रोग्रामों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग करेंगे, ईमान होगा। ये अल्लाह के हम पता ही क्या, खत्मे बुखारी शहर पटना में है। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मेरे से कुछ हुआ है, ये सब अल्लाह से हुआ है, किसी से कुछ नहीं हुआ। आप सब हजरात की मेहनत और दुआओं से हुआ है। खत्मे बुखारी शरीफ है, जिसको पूरी कराने के लिए खतौरा के बहुत ही
मुअत्तिल उस्ताद मेरे खुद उस्ताद शरफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप उनकी दुआ में भी शामिल हो और कुछ देर आपको दीन की नसीहत भी करेंगे, इसलिए हमने कोई इलाके को नहीं बुलाया, इस मरतबा से शहर में फोकस किया। आप सबसे उम्मीद है कि सब लोग हाजी के सामने मैदान देखो 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 प्रोग्राम होगा, देखो बच्चे वो प्रोग्राम पेश करेंगे और दस्तार बंदी 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा अमर चीज का हाफिज हुआ, एक बच्चा अमरची का हाफिज हुआ है और एक बच्चा शहर पन्ना में वो आपका ही बेटा। दिखाओ यार, 2 बच्चे पन्ना शहर के हाफिज हुए, तो दोनों बच्चों की दस्तार बंदी होना है, खत्म बुखारी होना है। हम अपने जितने शहर के उलमा किराम हैं, आप सबके हाथों से हम अपना उनका इकराम करवाएंगे, आपके हाथों से अपने बच्चों को, बच्चियों ऊपर जो बच्चियों का जो प्रोग्राम रखा गया है सिर्फ मस्तूरात ही मदरसे के अंदर, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बड़ी तू पकड़ो दिखाइए अलग है और मर्दों का प्रोग्राम नीचे। चल ले तो मैंने चल ले यार। इंशाल्लाह आप जरूर अरे जो करने और उसके बाद बुखारी शरीफ बैठे अल्लाह दुआ में शामिल होंगे मैं कई बार लगा ना काटू वहां पे जी है और हम अपने उलमा आखिरी प्रोग्राम है 1 साल का, उसमें सबका एजाज इकराम करना चाहते हैं। नीचे नहीं, हम ऊपर दिख रहे थे। आपको भी लगेगा इंशाल्लाह किस अमल की बरकत से नीचे वाली मां के बदले में मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है दाढ़ी खाना और बाजू लड़का सकते घुमती ऊपर कर वही की कह आप सबकी नजात के लिए काफी। अब नियत तो कर लीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। यार का करो अगला माशाअल्लाह। आप जिले जमाना बड़ी गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम्हें जल्दी ये दास्तां कहते कहते तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, जज्ब को छू लो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, जज्ब